Hello friends, here we are with the second part of the chapter which is market, which is sixth chapter in economics of class 11. In the previous video we have understood the term market and its characteristics. In this video we are going to see the three types of classification of market in on the basis of different things. So let's get started with this video. In this video, we are going to see the classification of market based on location, classification of market based on the quantity, and classification of market based on the competition. Firstly, we will start with the market based on the location. Location, अगर हम लोग देखें, so it's just a piece of land or an area in which market has been covered. Okay. Now, for the example, let's start with the first one, which is local market. Local market is a market where the products and services are produced and sold at the same place. They are limited to the respective city or villages. For example, markets of clay and utensils. Now, if there is there is a city name, there is a city named रामपुर. Okay, हमने एक सिटी का नाम रख दिया रामपुर. अब वो जो सिटी है उस वहाँ पे ना बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडरी करे हुए साड़ीज़ मिलती है. ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी साड़ीज़ मिलती है. सो वो रामपुर में अगर बन रही है साड़ी और वहीं के लोग उससे परचेज़ कर रहे हैं साड़ी, तो क्या हो जाएगा, ये लोकल मार्केट हो जाएगी. क्योंकि परचेज़ भी वहीं पे हो रहा है और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स भी उसी जगह पे हो रहा है. सो वी विल कवर दैट थिंग इन द लोकल मार्केट. अब द थिंग इज़, when the selling of products and services is limited to a region or a state is called a regional market. It means that the diverse markets in a state come under this category of regional market. These markets are spread in various regions of a state. For example, the Gujarat market in Ahmedabad and Vadodara are regional markets. For example, Ghari of Surat regional films, religious books, etc. नाउ अब ये जो रामपुर में हमारी जो साड़ीज़ बनी, जो बहुत अच्छी बनती है, अब वही साड़ी रामपुर जो सिटी है वो है गुजरात में. ठीक है, इफ़ वी कंसिडर रामपुर इज़ अ सिटी इन गुजरात. अब यही साड़ी वो पूरे के पूरे गुजरात में सेल कर रहा है, इन राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, गांधीधाम, सारी जगह पे. सो वो क्या हो जाएगा, वो रीजनल मार्केट का एग्जाम्पल हो जाएगा. बन रही है रामपुर में, रामपुर नाम के विलेज में, बट सेल कहाँ हो रही है, ऑल ओवर द स्टेट में, इन वेरियस सिटीज़. सो दैट वी विल कवर इन द रीजनल मार्केट. ठीक है. नाउ if we carry that same example of saris of Rampur, which is very famous due to the embroidery work, is sold all over the India. The city is in Gujarat. The saris are sold in Gujarat. The saris are also sold in Rampur. But now the saris are got so popular that it is sold all over the national market, all over the nation, all over the India. सो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे नेशनल मार्केट में. when the products and services are purchased and sold throughout the country, then the market is called as national market. This market is spread through the various states of the nation. Dairy products, sari market, Hindi novels are few examples of the national market. I hope we are clear with the local market, regional market and national market. Now let's head on to the international market. We are going to continue that same example of the saris of Rampur. The saris of Rampur got so famous कि अब वो सारी रामपुर में तो सेल होती ही है, गुजरात में भी सेल होती है in various cities, and with that we are selling that in all over the nation, in the state like Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu. Okay, but with this we are selling in the country
लाइक दुबई, यूएसए, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया, पेरिस। तो वो क्या हो जाएगा कि परचेज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है? वो सिर्फ एक स्मॉल सिटी में विच इज़ नोन एज रामपुर। आई होप वी आर क्लियर विद दैट। अब ये जो एग्ज़ाम्पल था वो तो सिर्फ एक साड़ी का था, ठीक है ना। तो साड़ी तो ख़राब होती ही नहीं है कि आप कितने भी दिन उसको रखो, कितने भी दिन आप कितने भी दिन के बाद अगर वो पार्सल पहुँचे तो वो चल जाता है। सपोजिवली फ्रॉम रामपुर टू यूएसए इट यूज टू टेक 15 डेज। तो वो सारी जगह प्रॉपरली पैक्ड है पॉलीथीन बैग में एंड देन एक बॉक्स में, उसके बाद भी एक प्रॉपर बॉक्सिंग आ रहा है बड़ा सा, तो हम उसको सेल कर रहे हैं यूएसए में, तो वो ख़राब नहीं होगी। बट व्हेन इट कम्स टू the things which are perishable in nature, for example fruits, vegetables, dry fruits, milk, these are perishable in nature, ठीक है। if we continue with the same example that the Rampur is also famous for the apples, ठीक है। Rampur is also famous for the beautiful apple, for an amazingly sweet apples। अब वो क्या कर रहा है, वो अपने लोकल मार्केट में तो ईजिली सेल कर पाएगा, ठीक है। ये वहीं पे ग्रो हो रहा है, वहीं से तोड़ के वो अपने मार्केट में सेल कर पाएगा अपने ही सिटी के। बट ड्यू टू द फैसिलिटीज़ ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, अब वो हर जगह पे अपने एप्पल सेल कर पाएगा, ऑल ओवर द गुजरात, ऑल ओवर द इंडिया, विद दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो। I hope you have seen and noticed the selling of fruits, vegetables and spices, especially the spices, all over the world through India. India used to export the fruits of Jammu and Kashmir, which is apples, and dry fruits also, like walnuts, badam, almonds, kaju, cashews, everything. It is just due to the cold storage facility, and due to this cold storage facility what we can do is, if अगर रामपुर में बहुत ज़्यादा एप्पल्स ग्रो हो गए हैं एक सीज़न में, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं एक टाइम तक, और उसके बाद अगर हम उसको धीरे धीरे, अगर हम ऑल ओवर द इंडिया में अगर हम कॉन्टैक्ट बना रहे हैं और जल्दी से अगर हम उसको सेल कर दें, तब भी हमें एक प्रॉपर प्राइस मिल सकता है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस हमारे फार्मर्स को या कोई भी चीज़ में किसी को भी नुकसान नहीं होगा। These were the market based on the location. Now let's see the market based on the quantity. Okay. As per the quantity, we can classify the market into two types, which is wholesale market and retail market. Now in the wholesale market, you have already heard, if you live in Surat, Gujarat, that Bhagal is famous for the wholesale market. या भागल पे सारी टाइप की चीज़ें मिल जाएगी आपको बल्क में अगर आपको लेने जाओगे तो। सो होलसेल मार्केट इज़ मेनली रिलेटेड टू द बल्क परचेज और द बल्क सेलिंग। रिंग रोड पर आप साड़ीज़ लेने जाते हो तो जो कुछ मार्केट्स हैं वहाँ पे आपको सिर्फ होलसेल में ही ख़रीदने पड़ेंगे, आपको मिनिमम 100 क्वान्टिटीज़ परचेज करनी ही पड़ेगी साड़ी, सूट्स और लहंगा की। बट कुछ कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप 1 या 2 पीसेस, 3-4 पीसेस भी आप परचेज कर सकते हो, उसे हम बोलेंगे रिटेल मार्केट, ठीक है। होलसेल मार्केट में बल्क परचेज और बल्क सेलिंग कवर होती है, एंड रिटेल मार्केट में आपको 2 to 3 पीस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप वेजिटेबल्स ले रहे हो, आपने सरदार मार्केट का नाम सुना ही होगा इफ़ यू लिव इन सूरत। तो सरदार मार्केट में क्या होता है, बल्क में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सेल होते हैं, और जो हमारे वेजिटेबल वेंडर्स हैं जो आपकी बिल्डिंग्स में आते हैं, या अगर आप भटार पे, उमा भवन पे अगर आप जा रहे हैं, सो वो आपको मिल जाएंगे, राइट। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कि आपको आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए। ओवर हियर सरदार मार्केट इज़ अ होलसेल मार्केट फॉर द वेजिटेबल्स, एंड उमा भवन और योर बेसिक स्टोर्स, जस्ट यू कैन काउंट धीरज सन्स, मेट्रो, AV Sons and your local vegetable sellers are the retail market, जहाँ पे आप बल्क में भी आप उनको बोल सकते हो, गिविंग अ प्रीपेड ऑर्डर कि मुझे 5 किलो वेजिटेबल्स चाहिए,
टोमेटो क्योंकि मेरे घर पे कल गेस्ट आने वाले हैं, सो आई वॉन्ट टू मेक अ ह्यूज बाउल ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। सो उसमें आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, बट होलसेल मार्केट में तो आपको मिनिमम 5 से 10 क्वांटिटी परचेज करनी ही पड़ती है। सो इफ़ वी सम अप द होलसेल मार्केट, here the sales and purchase of items is done on the large scale. The wholesale traders buy the wholesale goods from the market and sell it to the retailer traders. This way, the retail traders became the buyers while the wholesale traders are an important link between the buyers and the producers. ठीक है, आज सरदार मार्केट में हमें जो 100 किलो 200 किलो के जो वेजिटेबल्स मिल रहे हैं और हमें उतने परचेज ही करने हैं, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स या फार्मर्स से लिंक करके हमारे रिटेलर्स को देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू सी दिस चेन, हमारा फार्मर है वो बहुत ही बल्क में प्रोड्यूस करता है। अब फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने सेल किया होलसेलर को और होलसेलर ने रिटेल सेल किया रिटेलर्स को, एंड रिटेलर्स ने लास्ट में सेल किया कंज्यूमर को, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मर क्या हो गया, फार्मर इज़ अ प्रोड्यूसर एंड होलसेलर इज़ अ चेन बिटवीन द रिटेलर एंड द फार्मर विच इज़ अ प्रोड्यूसर, ठीक है। अब यही चेन कंटिन्यू होके आ जाएगी हमारे रिटेलर के पास। द सेल्स एंड परचेज एट अ स्मॉल स्केल इन दिस मार्केट, thus the retail traders became an important link and provide the goods and services to the consumer. The retail traders buy the goods and services in the large scale and then sell it to the consumer or a smaller retailer according to the demands and needs. अगर आप आज रिटेलर के पास जा रहे हो कि मुझे सिर्फ आधा किलो ही धनिया चाहिए या आधा किलो ही टमाटर चाहिए या 2 पीस ही आलू चाहिए, तो वो आपको देने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट अगर आप सिर्फ 2 पीस टमाटर या पोटैटो आप फार्मर से या होलसेलर से मांगने जाओगे तो आपको बिल्कुल नहीं देंगे। या सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्लासीफाई द मार्केट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी विच इज़ होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट। लेट्स गो टू द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट विच इज़ मार्केट बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन। व्हेन इट कम्स टू द कॉम्पिटिशन, वो तो होता ही है हमारे मार्केट में, या अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो कोई भी पर्सन अपने हिसाब से अपना प्राइस लगा के चीज़ें सेल करेगा, या तो कोई भी कंज्यूमर अपना प्राइस देके अपने हिसाब से गुड्स को परचेस करेगा। कंपटीशन एक ऐसी चीज़ होती है जो बैलेंस बना के रखती है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या अगर हमारे पास सिर्फ एक ही बायर है या एक ही सेलर है तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी एंड कोई कंपटीशन बचेगा ही नहीं और वो अपने हिसाब से ही अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेंगे, विच विल बी हार्मफुल फॉर द बायर्स और फॉर द सेलर्स। सो फॉर दैट competition is really important in the market. We can see the classification of market based on the competition in 2 types: perfect competition and imperfect competition. Imperfect competition is furtherly classified into 3 types: monopoly, monopolistic and oligopoly. This type of monopoly, oligopoly and monopolistic and perfect competition will be seen in the further parts of the video. Thank you and stay connected for the more videos.